السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا نیو ویڈیو ولاگ ہے، اس میں آج ایک بھائی انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے، تو ان سے کچھ سوالات تھے، کچھ معلومات تھی ان کے پاس۔ اگر کوئی بھائی بھی ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو ہم نے اسی لیے یہ ویڈیو پوری بنائی ہے، تو انشاءاللہ آپ سے اس میں کچھ نہ کچھ سبق لازمی ملے گا۔ وہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دینا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ السلام علیکم بلال بھائی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ بھائی بنا۔ تو آپ جب کمپنی میں گئے تھے انٹرویو دینے کے لیے، تو آپ سے کیا کیا سوالات پوچھے تھے کمپنی والوں نے کہ کیا کام جانتے ہو؟ مطلب کس طرح کے سوال پوچھے تھے جب آپ بجلی کا انٹرویو دینے کے لیے گئے؟ ভাই যখন আমি আর কি ইন্টারভিউ দিতে গেছিলাম, তো আমাকেও লোক বলছিল যে তুমি কি কি কাম জানো। اچھا তো আমি বললাম যে আমি কাম জানি সাধারণ ওয়ারিং, اچھا পিপিসি اچھا বা ডিবি বোর্ড, আমি এই কাজগুলো আর কি জানি। اچھا তো উনি আমাকে বলল যে কেবল ট্রে বা এমটি কাম মালুম হ্যাঁ। اچھا তো আমি বললাম হ্যাঁ, কেবল ট্রে এমটি কাম কিছু কিছু মালুম, একদম আর কি ফুল মালুম না। اچھا পরে উনি বলল যে ঠিক আছে, তে চলো ইন্টারভিউ দাও। اچھا আহ, আমরা গিয়েছিলাম আর কি 83 জন লোক। তো اچھا 83 জন লোকের সাথে ইন্টারভিউ দিলাম। اچھا 83 জনের মধ্যে তিন জনে ঠিক ছিলাম আমরা আর কি হেল্পার হিসেবে, আর সবাই ফেল হয়েছিল। اچھا ایک منٹ صبر کرو۔ ابھی یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ انٹرویو دینے کے لیے گئے تھے ہم لوگ کمپنی میں، دمام میں کمپنی لگی ہوئی تھی، تو اس کو بندے کی ریکوائرمنٹ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مطلب کہ کتنا کام کیا ہے، اپنے ملک میں کتنا کام کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 2 سال 3 سال کام کیا ہے وہاں پہ اپنے دیش میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں سے پوچھا کہ آپ کے پاس جو ہے نا گلف ایکسپیرینس کتنا ہے، مطلب کہ آپ نے سعودی عربیہ، دبئی، قطر، عمان وغیرہ میں آپ نے کتنے سال کام کیا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، نیا ہوں۔ تو یہاں پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو ایکسپیرینس لیول لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا کیا کام آتا ہے، آپ کس کس کام کے بارے میں جانتے ہو۔ تو اس نے بتایا کہ ڈی بی بورڈ کے بارے میں آتا ہے، کیبل ٹرے کے بارے میں آتا ہے، پینل وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، مطلب کہ انسٹالیشن اس کی ڈریسنگ وغیرہ کرنی آتی ہے۔ تو اس نے یہ کام بتایا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کو جو ریکوائرمنٹ تھی ان کو تھی آل اوور، مطلب کہ ای ایم ٹی پیپنگ ہوتی ہے، جیسے کہ میں آپ کو یہ پیپنگ دکھا رہا ہوں، یہ وائٹ کلر کی آپ کو ریڈ کے ساتھ نظر آ رہی ہوگی پیپنگ، اس کو ای ایم ٹی بولتے ہیں۔ یہ والی پیپنگ آپ کو کرنے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اس نے کہا مجھے تھوڑا تھوڑا معلوم ہے۔ تو اس کے سامنے یہ آپ کو بلیک کلر کے پیپ نظر آ رہے ہوں گے، یہ پی وی سی کے پیپ ہیں۔ تو اس بھائی سے پوچھا کہ آپ کو پی وی سی کی پیپنگ آتی ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا تھوڑا مطلب کہ معلوم ہے، ابھی میں نیا آیا ہوں تو اس وجہ سے۔ تو یہ تقریباً 85 بندہ تھا نا হ্যাঁ, بلال بھائی؟ 50 বন্ধু। تو یہ تقریباً 85 بندہ تھا، وہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے گیا۔ تو ان کے پاس مطلب کہ جو جتنا بھی بندہ گیا تو انہوں نے مطلب کہ ہر ایک بندے کو علیحدہ علیحدہ کر کے وہ روم میں لے کے گیا ان سے انٹرویو میں۔ آگے پھر انہوں نے اور کیا پوچھا آپ سے ای ایم ٹی کے بارے میں، اور پی وی سی کے بعد انہوں نے اور کیا پوچھا آپ سے؟ इसको পরে আমাকে বলল যে আর কি কাম জানো। ফের আমি বললাম যে সির্ফ এতটুকু কামই আমি জানি, আর বেশি আর কি জানি না। اچھا তারপরে কিছু লোক আর কি পেপার দিল বা সার্টিফিকেট দিল যে اچھا আমি এই কামটা জানি। اچھا তো সার্টিফিকেট পেপার দেখলো, তো ও লোক বলল যে আমার কোনো সার্টিফিকেট বা পেপারের কোনো জরুরত নেই বা اچھا দরকার নাই। اچھا এ তোমরা তো اچھا আমার কাম চাই। اچھا तो उसने वो फेंक दिया, اچھا वो सर्टिफिकेट और
पेपर वो फेंक दिया, फिर बोला काम करो, मैं काम देखेगा। अच्छा তো কাম দেখাইলো ওই লোক, কাম দেখা ফেল খাইছে, পরে ওনাদের আর কি বাতিল করে দিছে। अच्छा, एक मिनट। तो मैं आपको सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बता दूं, और जो भाई ने बात की है वो ये कह रहे हैं कि भाई कि मेरे पास डिग्री थी, ठीक है, इसने डिप्लोमा किया हुआ था इलेक्ट्रिकल में। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमें डिप्लोमे से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है, आपने डिग्री की है जो की है उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। डिग्री जो होती है वो आपको एक इदारे तक पहुंचाने के लिए होती है, ना कि वो आपको काम दिलाने के लिए होती है। काम को दिलाना या काम को लेना या किसी कंपनी के अंदर ऑफर हासिल करना, वो जो होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको काम कितना आता है। उन्होंने कहा कि भाई आप बेशक इस डिग्री को साइड पे रख दो। उन्होंने अगलों ने कहा हमें डिग्री नहीं चाहिए आपकी, हमें आपका काम चाहिए, आपको हाथ से काम कितना आता है। तो ये नहीं होता यहाँ पे गल्फ कंट्री में कि आप डिग्रियाँ लेके आ जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका काम चल जाएगा, ऐसे कभी भी नहीं होता। একদম সহি। और उन्होंने देखा कि भाई आपको ईएमटी का काम आता है नहीं आता, उन्होंने कहा पीवीसी का आपको काम आता है नहीं आता। अगले फिर इस तरह होता है कि अगर आप गल्फ कंट्री में तनाज़ा ले रहे हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको कंपनी वाला जो भी फोरमैन होगा, उनका जो भी होगा आगे, जो उनका मतलब कि रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, वो आपसे टेस्ट लेगा। टेस्ट कैसे लेगा? वो बंदा आपके पास वहीं पे खड़े होके आपको कुछ टाइम देगा, वो आपको कुछ जगह बताएगा कि भाई यहाँ पे मैंने कुबरी लगानी है। मतलब कि यहाँ पे अभी मैं आपको छोटी सी कुबरी दिखाता हूँ, कहीं पे लगी है तो यहाँ पे नज़दीक में मेरे कोई कुबरी नहीं लगी हुई, तो मैं आपको बताता। तो हाफ सेट लगा हुआ है, तो ये जिस तरह आपको ये हाफ सेट रेड पैप से आगे करके थोड़ा सा ये मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ, ये हाफ सेट लगा हुआ है, ठीक हो गया। ये जो हाफ सेट है ना, वो इस तरह की जगह दे देंगे आपको कि कहेंगे कि भाई यहाँ पे हाफ सेट लगाना है, इसको कितना मतलब कि डाउन आएगा, कितना अप आएगा। तो वो ये चीज़ देखते हैं कि भाई आपको आपको अगर आप कह भी देते हो कि मुझे काम आता है, तो वो अगला कहता है कि भाई यहाँ पे मुझे हाफ सेट एक लगा के दिखाओ कि आप कैसे काम कर लेते हो, ठीक है। तो ये जो डिग्रियों वाला चक्कर है ना, ये डिग्रियां सिर्फ आपको इदारे तक पहुंचाने के लिए होती हैं, ना कि आपको काम दिलवाने के लिए होती हैं कि आपका जो काम है डिग्री के ऊपर ही होगा। डिग्री के ऊपर नहीं होता। डिग्री एक रिस्पेक्टेबल चीज़ होती है। डिग्री मतलब कि आपकी थोड़ा सा आपको वो मेयार मिल जाता है कि जो समझो कि आपको अगर काम नहीं भी आता ना, और एक और आपके साथ हेल्पर है, तो उससे थोड़ा आपकी कदर इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि आपके पास थोड़ी तालीम है, ठीक है, आपके अंदर थोड़ी इंसानियत होगी। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से मैं कुछ वैसे बात नहीं करना चाहता। ये होता है कि थोड़ी बहुत इंसान को तरजीह दी जाती है। अगर आपको वेल एंड गुड काम आता है, मैं कहता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाएगी। अगर आपको काम नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं दिया, मतलब कि आपको खोता घोड़ा एक समझ लें कि ऐसे ही काम होगा आपके साथ फिर। तो और उन्होंने बिलाल भाई आपसे क्या पूछा? তো এরপরে আর কি কোনো কিছু বলে নাই উনি, এরপরে সব লোককে আর কি ফোরম্যানকে বললো যে তুমি সব লোক নিয়ে চলে যাও। अच्छा तो सब लोग को गाड़ी में बैठा के रियाज में भेज दिया। अच्छा, तो उनका कहने का मतलब ये था कि उसमें से 83 बंदा इंटरव्यू देने के लिए गया, तो 83 बंदे को ही ईएमटी का पीवीसी का काम मालूम नहीं था, तो उन्होंने किसी एक बंदे को भी नहीं रखा, उन्होंने सबको वापस भेज दिया। उन्होंने कहा भाई हमें बंदे नहीं चाहिए। क्यों? अगर काम किसी एक बंदे को भी मालूम होता तो वो लाजिम किसी न किसी को रख लेते। हम लोग कहते हैं ज़रूर, इदारे पे तनकीद करते हैं कि यार हमें ये हो गया, हम इतना काम आता था, इतना काम आता था। भाई मेरे जब तक अगर ट्रांसफ़र ले रहे हो, तो अगर आपको मतलब कि सऊदी अरेबिया में हो तो तनाज़ा ले रहे हो किसी दूसरी कंपनी में, तो आपको वो चेक करके रखेंगे। वो आपको ऐसे कभी भी नहीं रखेंगे कि बोल के आपसे इंटरव्यू ले लेंगे, नहीं, ऐसे नहीं होता। काम हाथ से करवा के
2 दिन रखेंगे, 4 दिन आपको चेक लाजिम वो करेंगे, उसके बाद आपका तनाज़ा लेंगे। हाँ, कोई बड़ी कंपनी है तो कुछ कंपनियों का होता है, कुछ मेरे दोस्तों का भी हुआ है, एज़ ए मोबाइल पे ही इंटरव्यू हुआ है और उनका काम हो गया है। लेकिन अक्सर औक़ात यही होता है कि आपको जो होता है काम मतलब कि मालूम है, फिर वो उनको करके दिखाओगे तो उसके बाद ही आपको वो मतलब कि रखते हैं आगे, कंपनी तनाज़ा लेती है, आपका वो सारा प्रोसेस शुरू करवाती है। तो अगर आपको काम मालूम होगा, अगर आपको काम नहीं मालूम होगा तो आपको कंपनी नहीं रखती। तो जो भाई भी भाई सऊदी आना चाहता है, दुबई, कतर, कहीं पे भी आना चाहता है, वो लाजिम अपने काम में काम सीख के आए। ठीक हो गया? काम एक सीख के आएगा, इज्जत होगी, हर बंदा उसकी कदर करेगा। जिस बंदे को काम नहीं आता उसकी यहाँ कदर नहीं होती। ठीक हो गया? और डिप्लोमे वगैरह वो इंसान किसी तरीके पाकिस्तान, बांग्ला में, इंडिया में कहीं पे भी आप जाओगे वो डिप्लोमे मिल जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है आपके हाथ से आपको कितना काम आता है। अगर हाथ से आपको काम आता है तो इंशाल्लाह आपको तरक्की ही मिलेगी और इंशाल्लाह इज़्ज़त भी आपको उससे बढ़ के मिलेगी। अगर आपको काम नहीं आता तो तकरीबन हर बंदा माज़रत कर लेता है। तो अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको हमारी जल्दी से जल्दी मिल सके। ये আপনারা এই চ্যানেলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন যে কীরকম হইলো না হইলো।